ein bisschen Grammatik, Modalpartikeln. Es gibt viele Modalpartikeln eigentlich im Deutschen. Zuerst einmal, was sind Modalpartikeln? Wie werden sie benutzt? Sind sie wirklich nur einfach Fillers oder was ist eigentlich die Wichtigkeit von diesen Partikeln? Sind sie in allen Sprachen so oder vielleicht nicht? In unseren Sprachen haben wir eigentlich Modalpartikel nicht, aber dann andere Formate haben wir, andere Fillers haben wir. हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में इस तरीके से मोडाल पार्टिकल नहीं है, aber dann wir haben unsere andere Dinge, die eigentlich die Sprache schon machen. Oder man kann sagen, Modalpartikel äußern Gefühle, Emotionen. Manchmal sagen sie etwas zusätzlich dazu. Aber Modalpartikel sind ein bisschen extra. Wenn sie fehlen, dann ist das auch okay. Man sollte Modalpartikel nur dann benutzen, wenn man sie richtig versteht. Ansonsten kann man einfach sie lassen. Sie machen natürlich die Sprache schon und die Menschen, die sie verstehen, amüsieren sich, weil sie einfach Gefühle ausbringen. Man kann sich besser äußern. Wenn Sie einige Modalpartikel auch richtig verstehen, dann können Sie sogar die Deutschen beeinflussen. Die Deutschen denken zweimal und sie haben das Gefühl, dass dieser Mensch wirklich wunderbar Deutsch gesprochen oder gelernt hat. Ja? So, in unserer Sprache weiß ich nicht, ob wir sowas haben, aber normalerweise nicht. Modalpartikel क्या हुए? Are these fillers? ये केवल फिलर्स नहीं है. फिलर्स में तो जैसे हम कोई बोलते हैं बोले तो वैसे तो हाँ, ये फिलर्स नहीं है. ये तो इमोशन को एक्सप्रेस करवाते हैं. फिलर्स भी है जर्मन में, जैसे अल्जो, हम लोग कहते हैं अल्जो, ये फिलर है ना या, और फिर स्टार्ट करते हैं ये फिलर है. Aber Modalpartikel, also äußern etwas zusätzlich, extra. Manchmal, also was eigentlich, das kann man auch hier sehen. Was äußern Sie? Hier haben wir 5. Aber, doch, ja, mal, denn. Freundlichkeit. Überraschung manchmal. Wir haben auch einige Audios, das hören wir auch, damit wir das besser verstehen. Aber Freundlichkeit, Überraschung, mit doch kann man auch. Freundlichkeit, Empörung. Empörung bedeutet? Empörung bedeutet also, man will jein. Man will etwas nicht akzeptieren. Empörung. मतलब आप अपनी अनिच्छा या विरोध जता रहे हो किसी चीज को लिए. ऐसे थोड़ी होता है यार. Doch. Vorschlag manchmal Ermunterung. You encourage someone. किसी को आप मोटिवेट करते हो किसी चीज के लिए है, तो क्या हो गया, ऐसे भी कभी कभी
हम हमारी लैंग्वेज में भी इस तरह के, जैसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग इस तरह की चीजें कैसे करते हैं, मोडाल पार्टिकल तो नहीं बोलते उनको, लेकिन तो क्या हो गया, मैंने बोला तो क्या हो गया, मतलब इसको होने दो, हो गया तो हो गया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो क्या हो गया, अरे खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले, तो कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, मैं उसको खिला देना चाहता हूं ना। तो बहुत यूज करते हैं अपन, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। लेट आया तो क्या मतलब, आ गया तो ठीक है, मतलब तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, ठीक है। तो और बताओ, कुछ कुछ चीजें इस तरह की हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। खा ले, देखो खा ले, मैं ये भी तो कह सकता हूं खा ले, बट खा ले में नहीं, खा ले, जब मैं खा ले बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो खा ही ले, थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर रहा हूं ना, एक तरह से एनकरेज कर रहा हूं खाने के लिए। और बोलो, अच्छा भी इस तरह का यूज है, बीच में करते हैं ना किसी चीज को, मतलब आप उस लैंग्वेज को एनरिच कर रहे होते हो, आप किसी बात को, मतलब वो एक्स्ट्रा वर्ड है लेकिन कोई फीलिंग दे रहे हैं, किसी को आप अपना भाव साथ में दे रहे हो उस चीज के लिए। जैसे मान लो डेन है, जर्मन लैंग्वेज में ये डेन जो है फ्रेंडलिशकाइट und इंटरेस्ट है, दिखाता है। अब इसको समझ में आए तो यूज किया जा सकता है। जैसे डेन को यूज करने का सेफ तरीका है कि डब्ल्यू वर्ड में ये यूज हो जाता है, was magst du denn, was magst du और was magst du denn, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इफ यू डोंट यूज देन स्टिल द मीनिंग इज सेम, बट वेन यू से was magst du denn, इसमें आपका इंटरेस्ट दिखता है कि बता यार, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको पूछ लिया केवल फॉर्मेलिटी के लिए, ना मैं इंटरेस्टेड हूं, बोल तो सुना। was magst du denn, also man zeigt eigene Interesse, was magst du, इसमें भी मैं पूछ रहा हूं लेकिन इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा अगले को, वो ऐसे नहीं समझ ले कि फॉर्मेलिटी है, ना फॉर्मेलिटी नहीं है मेरे लिए। देखो मैंने बोला ना, हमारी हिंदी में एक ये भी है लैंग्वेज में कि हम लोग डबल यूज करते हैं कई बार एडजेक्टिव के साथ, तो ये बहुत ही है हमारी लैंग्वेज में। धीरे धीरे 2 बार क्यों यूज कर लेते हैं अपन, आदत है हमारी, ऐसे लैंग्वेजेस की अपनी अपनी आदत होती है। धीरे धीरे, होले ही बोल दो यार, होले से बोल दो, धीरे धीरे। एडजेक्टिव में बहुत करते हैं हम लोग हिंदी में, क्या अब कोई इसको ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते। मजेदार बात ये हो रही है मोडाल पार्टिकल की, das sind nicht übersetzbar, कोई इसका मीनिंग नहीं बता सकता कि दूसरी लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग हो, ये तो केवल फील करने का और फील कराने का मामला है। अब इसको कैसे आप फील कराओगे, ये उस लैंग्वेज में जब आप बहुत उसको सुनते हो, बहुत आप उसके बारे में पढ़ते हो। पढ़ते क्या हो, ये लिखने में तो आते ही नहीं, ये जनरली बोलचाल में ही ज्यादा काम में आते हैं, ये और इंटरेस्टिंग बात है इनकी। Also Modalpartikel hören Sie normalerweise in gesprochenen Sprache, nicht in schriftlich. Warum nicht? Also das äußert man mit Gefühl, aber wenn Sie schreiben, Gefühl sind nicht da. रिटन में फीलिंग कैसे दिखाओगे आप? सुनो तो, अरे सुन लो, एक तो मैं कह रहा हूं सुनो, एक बार अरे सुन लो, अब सुन लो, ये एक्चुअली ये बेटोनुम का खेल है, ये भावनाओं का खेल है, ये फीलिंग का खेल है, और ये बेटोनुम से होता है, वो लिखने में नहीं आता। So wenn Sie eigentlich Modalpartikel benutzen, hören Sie, verstehen die Gefühle, Emotionen ein bisschen extra. मैं अलग अलग लोगों से मिला, अलग ही बोल दो,
अलग अलग 2 बार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो धीरे धीरे आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वही चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर एक लैंग्वेज में कुछ इस तरह की स्टाइल होती है जिसको लोग मतलब शायद उससे फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उससे किसी बात को और अच्छे से समझाना चाहते हैं, उसमें कुछ न कुछ एक पुट देना चाहते हैं। तो मोडाल पार्टिकल में आप थोड़ी भावनाएं मिक्स करते हो और वो बेटोनुम से होता है। एक तो आप किसी को कहो खा ले और एक कहते हो खा ले, खा ले, अरे बोल दे, अब बोल भी दे, तो बोल दे, बोल भी दे, इसमें फर्क है। बोल, अरे बोलने से तो आप डरा रहे हो क्या? बोल भी दे, बोल भी दे का मतलब आप उसको एक तरह से मोटिवेट कर रहे हो। गर्मा गर्म चाय, 2 बार गर्मा गर्म, 2 बार गर्मी क्यों दिखा रहे हो भाई? आदत है हमारी गर्मा गर्म, गरम गरम बोल देते हैं, गरम गरम चाय, तो 2 बार क्यों बोल रहे हो? मतलब इसमें हम फीलिंग दिखा रहे हैं कि एकदम गर्म है, कड़क कड़क चाय भी बोल सकते हैं सीधा, लेकिन गर्मा गर्म बोलते हैं हम लोग। तो आप जब जर्मन्स को सुनते हो तो वो ये यूज कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में। मोडाल पार्टिकल तो आई थिंक 40 से भी ज्यादा है, लेकिन ये वो 5 हैं जो हमको आ सकते हैं ऐसे समझ लो आप। ये 5 सबसे इजी हैं, और भी हैं काफी सारे हमको आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही आ सकते हैं, लेकिन बुक में ये दिए तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये वो हैं जो सबसे पहले आ सकते हैं। इनके अलावा भी कई हैं, जैसे हाल्ट, एक हाल्ट है। हाल्ट का मतलब आदमी ये कहना चाहता है कि भाई मैं क्या ही करूं, मतलब मेरे बस में नहीं है। Das sind halt die Kinder, Kinder sind eben Kinder, eben एक, eben और halt, eben और halt में आदमी गिव अप कर देता है कि भाई क्या ही कर सकता हूं मैं, तो भाई इसमें देखो मैं तो क्या करूं। जैसे हम कहते हैं भाई मैं तो क्या करूं, मैं तो क्या करूं का मतलब है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, कि हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे के ऐसे ही जैसे वो हैं। अपनी एक तरह से गिव अप जब आप करते हो तो हाल्ट यूज करते हो अक्सर, मतलब मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ये वाला भाव देते हो आप जब हाल्ट यूज करते हो, तो अक्सर आप नोटिस करोगे इसमें। सो आबर में फ्रेundlichkeit und Überraschung, das ist aber schon। आप ये भी कह सकते हो das ist doch schon, das ist ja schon, das ist ja schon, das ist doch schon, das ist aber schon, तीनों ही कह सकते हो आप, लेकिन das ist schon भी वही है। लेकिन जब आप कहते हो das ist aber schon, तो वो कैसे हो सकता है, कुछ तो बात है एक्स्ट्रा। das ist doch schon, आप जब डोख बोल रहे होते हो तो फ्रेundlichkeit है, das ist doch unmöglich, यहां पे आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, unmöglich, आप कह रहे हो कि यार ऐसे नहीं हो सकता, das ist doch unmöglich, डोख लगा दिया आपने, मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि यार नहीं नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। 5 लोग आए थे, अरे 5 ही तो आए हैं, 5 ही तो आए हैं, 5 लोग आए हैं, 5 ही तो आए हैं, मतलब कोई अलग भाव है जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, फर्क है ना दोनों में। 5 लोग आए हैं और वे 5 आए हैं, 5 लोग आए हैं, 5 ही तो आए हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये भाषा का कमाल है कि आप उसमें एक छोटा सा कुछ पुट ऐसा घुसा देते हो कि उसमें कुछ फीलिंग है, आप उसको कहते हो कि यार इसमें क्या हो गया, तो 5 तो आने चाहिए शायद, एक में आप ये कह रहे हो यार 5 आ गए, यार हम तो उनके बारात में 3 ही गए थे, वो तो 5 आए, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते शायद, ऐसा कुछ तो भाव है ना उसमें। सो फ्रेundlichkeit und Überraschung aber के साथ में, der sieht aber sympathisch aus। Was ist sympathisch? Sympathisch? Sympathetic नहीं है ये, वो तो उसकी तो स्पेलिंग ही अलग होती है जर्मन में। सिंपैथिश का मतलब है एक तरह से गुड इन नेचर, लाइकेबल पर्सनैलिटी,
friendliness is there. Er ist cool, er ist nett, er ist freundlich. ये वाला भाव है किसी में, मतलब वो ऐसा पर्सन है जिसको सब पसंद करते हैं. Er ist sympathisch, friendly in nature, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है. So, Überraschung. Der sieht aber sympathisch aus. Dein T-Shirt ist aber toll, aber schon. अरे तुम्हारी टी शर्ट तो क्या मस्त है. टी शर्ट अच्छी है, लेकिन एक में कह रहा बंदा यार क्या टी शर्ट मस्त लाए हो क्या, ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा भाव दिया उसमें. Dein T-Shirt ist doch schon. Ermunterung, Ermunterung, doch schon बोला तो मैं Ermunterung यूज कर रहा हूं, मीन्स मैं एनकरेज करना चाहता हूं उसको कि ऐसे टी शर्ट पहना करो. ये भाव है ना इसमें. तो हर बार वही भाव होगा ऐसा नहीं है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब आप बहुत बार यूज करते हो. एम्प्योरुंग में भी है इसमें. एम्प्योरुंग का मतलब किसी चीज का विरोध भी है इसमें. जैसे das ist doch unmöglich, ऐसा नहीं हो सकता. das ist doch unmöglich मतलब मैं नहीं आ सकता यार, 4 बजे उठ के कोई आता है क्या. das ist doch unmöglich मीन्स मैं उस बात का थोड़ा विरोध सा कर रहा हूं, और मैं उस चीज को प्रमोट भी कर सकता हूं डॉग से. das ist doch schon मतलब आपको थोड़ी फ्रेंडलीनेस दिखा सकता हूं मैं उससे थोड़ा अनफ्रेंडलीनेस दिखा सकता हूं. उसमें मैं एडवाइस कॉम डॉग मिट इन स्कीनो, कॉम डॉग मैं कहता हूं आजा यार सिनेमा देखने चलेंगे, आजा यार आना, मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं उस केस में. das ist doch gut, das ist ja gut. या में भी फ्रेंडलिशकाइट, एम्प्योरुंग, यूबराशुंग, और डॉक में भी. हाँ तो डॉक से भी एक्सप्रेस करते हैं इसको. हम लोगों को ये मीनिंग पता रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम लोग उस चीज को थोड़ा सा बेहतर समझेंगे, और हम ये समझेंगे कि ये बंदा नॉर्मल भी तो बोल सकता था, लेकिन इसने ये वाला भाव दिया है तो इनमें से कोई सा भाव होगा. इसका मतलब ये भी है कि गलत समझने का भी खतरा है. अगर आपको इसके मीनिंग नहीं पता चले तो आप देखो कि यार उसने तो बात जोर दे के तो कही थी, लेकिन वो किसी कॉन्टेक्स्ट में वो पॉजिटिव जा सकती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव जा सकती है. Aber wenn wir viele Sätze hören, verstehen, dann können wir es besser. Das ist ja nett. Das ist aber nett. Du bist ja auch hier. Du bist ja auch hier. यहाँ पे सरप्राइज, अरे तू भी आ गया यहाँ. Means I was not expecting you, but it is good that you are here. It may be surprise for me. Maybe good or not, but I am surprised, that is for sure. Das ist, इस बात की मुझे खुशी है, ऊपर वाले से ऐसे लगता है. Freundlichkeit means I am happy that you are there. I am surprised. Second one, Empörung, das ist ja gemein. Gemein, कितना कमीनापन, कोई कैसे इस चीज को. Das ist ja gemein. और अपने दोस्त को चीट कर लिया यार उसने, दोस्त को चीट कर लिया. हाँ दोस्त से कोई स्कूटी दिला के लाया है, 5,000 महंगी दिला लाया, बाजार में तो 5,000 कम मिलती है, और 3-4 दिन से कह रहा था यही लेनी है यही लेनी है. बाद में पता चला दलाल बन के बीच में दोस्त से 5,000 एक्स्ट्रा दिला दिए. Das ist ja gemein. यार कितना कमीना है ये आदमी, है ना. हाँ हम बोलते हैं है ना में भी वो भाव है कुछ. तो एक तो है, एक है ना. आप कह रहे हो हाँ यार ये तो है, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो ऐसा ही है. सो ये लैंग्वेज के लेवल पे इस तरह से. ओके, vielleicht liest Shubham, du kannst einmal diese Sätze lesen. Wir wollen sie einmal einfach fühlen. Lies mal einfach von oben nach unten. Das ist ja.
Freundlichkeit überraschung. Das ist aber schon des du sehen, der siehst aber sympathisch aus. Doch Freundlichkeit Empörung. Vorschlag, Ermunterung, okay. Das mache ich doch gerne. Das ist doch unmöglich. Komm doch mit ins Kino. Ja, Freundlichkeit, Überraschung, Empörung. Das ist ja nett. Du bist ja auch hier. Das ist ja gemein. Mal. Aufforderung, Befehl. Hilf mir mal. बेफेल क्या होता है? बेफेल, बेफेल तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है बेफेल तो। हिल्फ में माल, मदद कर मेरी, मदद करना, करना। हम ऐसे बोल देते हैं ना कभी, करना मतलब उसमें एक अलग भाव है। एक तो मदद कर, मदद करना मतलब डिमांड भी हो सकती है, वो ऑर्डर भी हो सकता है। और हर बार कहीं माल आ जाए वहां डिमांड और ऑर्डर हो, ये जरूरी भी नहीं है। आइन माल, स्वाई माल, वो एक अलग मामला है, वो अलग है। लेकिन अरे मदद कर देना, मदद करना। सो Aufforderung und Befehl. So mit denen ist das eigentlich ganz einfach. Mit alle W-Fragen können Sie einfach den benutzen. जितने भी W वर्ड हैं सबके साथ आप den बोल के थोड़ा सा ये भाव दे सकते हो। कौन सा भाव? Freundlichkeit und Interesse und manchmal auch Überraschung. Also sagen Sie jetzt, also Fragen mit den und ohne den. Jyoti, versuch mal. Den und ohne den. Was machst du gestern? Machtest du gestern? Was machtest du gestern denn? अब den कहाँ लिखे? Den कहीं भी लिख सकते हैं। Was machst du denn gestern? Machtest du denn gestern? Was machtest du denn gestern? Was machtest du denn gestern? और was machtest du gestern denn? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। Verb will be on second position, W word will be on first position, and after verb generally there will be subject or object, and then you can use then. Okay? Vikas, ein Satz mit den, ein Satz ohne den. Aber Frage, das sollte eine Frage sein. Was denkst du jetzt? Was denkst du denn jetzt? Okay. Noch einmal, ich habe das nicht mitbekommen. Was? Okay. Was denkst du denn? Was jetzt? denkst? Okay, was denkst du denn jetzt und was denkst du jetzt? Okay. Woran? Denken के साथ तो woran आन लगेगा ना। Woran denkst du? Woran denkst du denn? अरे सोच क्या रहा है? एक तो है क्या सोच रहा है, एक अरे सोच क्या रहा है, मतलब बता। दूसरे में आप इंटरेस्ट के साथ पूछ रहे हो, एक में क्या सोच रहे हो कि चलो पूछ लेते, बैठे हैं चलो कुछ तो पूछो इससे, ताकि इसको लगे मेरा कुछ तो पूछा। टाइम पास के लिए कुछ भी पूछ लेना और एक डेन लगा के इंटरेस्ट से पूछना, फर्क है दोनों में। ओके, कनिष्क, versuch mal noch eine Frage, andere Frage. Okay, Kanishk, du zuerst. Ich habe nicht mitbekommen. Okay. Warum nicht denn? समझ नहीं आया क्या?
ओके, जैसे तेरे को समझ नहीं आया, एक तेरे को समझ नहीं आया क्या, यही देन है। एक में तो तेरे को समझ नहीं आया, क्या तेरे को समझ नहीं आया, और एक इंटरेस्ट से पूछ सकते हैं हम लोग। ओके, हियर vielleicht वे fragen einmal mit den, einmal ohne den. Was machst du denn allein in dem Raum? Was machst du denn allein im Raum? In dem Raum? Noch eins? Was denkst du denn seine Karriere? 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 Was denkst du an deine Karriere? Was denkst du dann an Karriere? Denn an deine Karriere? Okay. Lauter. One comes to here und one comes to then here. Then here. Then here. So. Okay, one comes to here, one comes to then here. here. Okay. One gets to ins Kino. One gets to den ins Kino. या सो इसमें कोई स्ट्रेस ज़्यादा देना है कम देना है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको यूज़ करना है वैसे अपने आप। फीलिंग देन से आती है, और हम लोग लोगों को जब सुनेंगे तो हमको अपने आप पता चलेगा कि वो किस चीज़ पे कितना स्ट्रेस दे रहा है, नहीं दे रहा है, नॉर्मली यूज कर रहा है। सपना, डू विल्स्ट आउट फ्लाइस्ट? Ja, einmal Sapna und dann Kanishk. Was passiert denn? Und was passiert? Okay, was passiert denn? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इसमें लग रहा है ना बंदा जानना चाहता है कितना। ओके, गुड। या कनिष्क, डू Woher kommst du denn? वोहेर Kommst du denn? वोहेर कॉम्स टू देन। अरे तू कहाँ का है? अरे तू कहाँ का है? तू कहाँ का है? अरे तू कहाँ का है? अरे तू कब आया? ये जो इंटरेस्ट दिखता है उसमें, ये मोडाल पार्टिकल है। मनवीर, या मनवीर, Welche Hose kaufst du denn? वेल से हो से काउप्स टू देन, मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुमने यार 40 देख ली पैंट, खरीद कौन सी रहा है? तू खरीद भी रहा है कि नहीं? वेल से हो से काउप्स टू देन, क्या कि खरीदेगा भी कि नहीं पता नहीं, और एक इंटरेस्ट से भी कह सकता है। या बेटे, नॉक एटवास। Yes, sir, für Überraschung. Hast du denn das Auto gekauft? Hast du denn Auto gekauft? अरे वो वाला जो कार खरीदने वाला था तो वो खरीद ली तुमने? युवराशुंग सरप्राइज वाला एलिमेंट है ना उसमें। हो सकता है कभी पाइनलिशकाइट का एलिमेंट भी दिखे आपको, डिपेंड करता है कि बंदा किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। सो Freundlichkeit, Überraschung, Empörung mit Doch und Ja, जहन जी, Empörung किसी चीज़ के प्रति ना का भाव, Empörung। डोख और या, सबसे ज़्यादा आपको डोख और या ही दिखते हैं शायद। एंड माल में इधर दे रखा है इन्होंने aufordern, aussagen, fragen, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में भी इसको यूज किया जा रहा होता है। aufordern मतलब कोई चीज़ को डिमांड, और जनरल स्टेटमेंट में भी इसको काम में लिया जाता है, जनरल स्टेटमेंट में भी। बट उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया। अब वो कुछ एक्स्ट्रा क्या आ गया? दैट कैन बी मे बी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सरप्राइज, Peinlichkeit, it could be interest,
Freundlichkeit, das sind dann. Okay, jetzt mal vielleicht Jyoti, du. Wohin fährst du in Urlaub? Wo in den Urlaub fahren. Okay? Wohin fährst du denn in den Urlaub? In den Urlaub. Wohin fährst du denn in den Urlaub? Du, अरे तू कहाँ जाएगा? सबने बता दिया, तूने नहीं बताया यार. Wohin fährst du denn in den Urlaub? ये न्यूट्रल नहीं है, मतलब इधर या उधर कर देता है उसको. ये न्यूट्रल नहीं रहने देता, चाहे इंटरेस्ट उसमें शो करे, चाहे उसमें नाराजगी का भाव शो करे, चाहे उसमें, उसको न्यूट्रल नहीं रहने देता, क्योंकि फीलिंग है ये. Das bringt Emotion, das bringt Gefühl. Und welche Gefühle? Diese Gefühle normalerweise. Okay, Shubham, lies mal etwas von hier. Oben, ganz oben. Modalpraktiken sind typisch für die mündliche Sprache. Typisch, okay. Man benutzt sie, um seine Ansichten und Gefühle zu verstärken oder abzuschwächen. In Aussagesätzen stehen die Modalpraktiken meist hinter dem Verb. Die Bedeutung ist vom Kontext und von der Betonung des Satzes abhängig. ओके, मज़ेदार बात क्या है इसमें कि जी जिन टिपिश für die mündliche Sprache, they are typical in spoken language, means they are not written things, they are not for writing. Man benutzt sie, seine Ansichten, Absichten, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इरादा, फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कमजोर करने के लिए. 9 ही तो बजे, 9 बज गए. अब 9 ही तो बजे, मैं आप किसी बात का मतलब किसी के साथ फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो, ये डिपेंड करता है. तुमको बोला था ना कि कपड़े धो लेना, हाँ तो धो लूंगा. अब कब धोएगा? शाम तो हो गई. शाम कहाँ हो गई? 4 ही तो बजे, 4 ही तो बजे. मतलब अपने फेवर में आप बोल गए ना ये. और वो बंदा जो कह रहा है वो कह रहा है सुबह बोला था धोने के लिए, 4 बज गए, मतलब तूने 4 बजा दिया, अब कब तो सूखेंगे. वो ये कहना चाह रहा है शायद, 4 बज गए. अब इनको अगर लैंग्वेज में अगर इस चीज को अपन लिखें तो फीलिंग का थोड़ी पता चलेगा. आप तो कह रहे हो 4 बज गए, 4 बज गए, तो आप इसमें कोई फीलिंग, लिखने में तो 4 बज गए बस, लेकिन बोलने में तो 4 ही तो बजे हैं. 4 ही तो आ गया. देखो फिर से 4 तो बज गए. तो का ही खेल अलग अलग हो गया. एक में तो 4 ही तो बजे हैं, 4 तो बज गए, अब कब धोएगा कपड़े. ये वाला फीलिंग है इसमें. लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिखाया नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि फीलिंग्स, कोई इमोशंस कोई सिखाया नहीं जा सकता. वो तो होता है या नहीं होता, ये तो. हाँ, लेकिन ये वर्ड हमको पता हो और हम लोगों को नोटिस करें तो हम भी बोलने लग सकते हैं. फीलिंग तो आप में पहले से ही है. एक्चुअली फीलिंग थोड़ी सिखानी है, वो तो है आप में. लोगों को बोलते बोलते ये देखना और फिर आपको भी बोल पड़ना है. Die Betonung ist vom Kontext und von der Betonung des Satzes abhängig. ये टोन का कमाल है. Okay? Gut. Jetzt können wir vielleicht einige von dem Text. Okay, Shubham sagt etwas. Shubham und Jawar. Ja, bitte. Yes, sir. Besuchen Sie zum Zahnarzt, denn was lesen Sie denn? Ja, was lesen Sie denn? Was lesen Sie denn? आप क्या पढ़ रहे हो? आप ये क्या पढ़ रहे हो? मतलब शायद आश्चर्य है मुझे कि आप ये पढ़ रहे हो.
राइट? तो सरप्राइज भी हो सकता है। एक आप क्या पढ़ रहे हो, एक तो नॉर्मल है, आप ये क्या पढ़ रहे हो, मतलब, या फिर ये डेन हो जाएगा, was lesen Sie denn here? क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या पढ़ रहे हो आजकल, इसमें इंटरेस्ट है। Was lesen Sie denn heutzutage? Also so ist das wirklich interessant und unterschiedlich. Das ist vom Kontext abhängig. ओके आपको अगर इस तरह के सेंटेंस दिखते हैं कहीं पे टेक्स्ट में, वो लिख दो, आप तो अपनी कॉपी में लिख दो और फिर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा।